मुजा सरजा छत्री एड़ा कच्ची माड़ू की आयो आऊं कच्छ जा सपूत एड़ा क्रांति गुरु श्याम जी कृष्ण वर्मा के घणे घणे नमन करिया तो आई मारे कच्ची भाप भेणु के मुजा जजा जजा राम राम। तो हेलो गाइस, कैसे हो? तो आपका सभी का फिर से स्वागत है फिर से फाड़ू लोग जैसे वीडियो में। ये कुछ ज़्यादा ही फाड़ू बन चुका है वीडियो, मतलब एकदम खतरनाक वाला। SVN80 के बाद हो रहा है एलिशियम वीडियो के बाद अपने एलिशियम वीडियो भी था, पर वो एक मामूली था इसके सामने, इस ब्लॉग के सामने। और ये ज़्यादा बड़ा भी है, इंट्रो में छोटा रखूँगा। टाइटल डिस्क्रिप्शन इंट्रो देख के समझ गए होगे। मोदी जी को मिलने जा रहा हूँ, ऐसे ही नहीं जा रहा हूँ मैं तो, क्योंकि मेरे को मिल चुके हैं VVIP पास, एकदम मोदी जी के मुंह के पास, एकदम गले लग के। इतना भी नहीं वो उनके पर्सनल सिक्योरिटी जाने नहीं देंगे, तो उनसे थोड़ा ही आगे होंगे। समझ लो कितना आगे आपको बोलता हूँ मैं, समझ लो वो गेट है ना, गेट उधर, वो वाला गेट, काला कलर का गेट, वो उधर, मैं इधर। इतना दूर, इतना पास होंगे, या तो इससे भी कम में होंगे, इससे भी पास में। तो बेफालतू की बकवास करे बिना लोग को चालू करते हैं, फटाफट से पहुँचते हैं भुज, जहाँ पे मोदी जी आने वाले हैं। अभी तो सुबह हो रही है, और हम लोग को हमारी VVIP के पास में जाने के लिए दोपहर तक 1-2 बजे तक पहुँचेंगे भुज। 1-2 घंटा लगता है, अभी कुछ 11 बज रहे हैं, 1-2 घंटा लगेगा। 1-1:30 बजे पहुँचेंगे। मोदी जी कुछ 3-4 बजे का बोल रहे थे आएंगे। एयरपोर्ट से उतरते उधर से रैली आएगी, 4 बजे तक, 4:30-5 बजे तक पहुँचेंगे। तो क्या है कि उधर हमारे जाके क्या करना, उधर जाके बैठ जाना है, गाड़ी में जाएंगे हम लोग, उधर जाके बैठ जाएंगे, मस्त सीट पकड़ लेंगे आगे वाली। VVIP में पीछे वाली सीट ना मिले देखने के लिए, उसमें भी हम आगे वाली जाके सीट पकड़ेंगे। चलो चलते हैं। अभी हाल फटाफट पहले सबसे जगह जाके कपड़े चेंज करते हैं। ऐसे ही नहीं जा रहे हैं, पहले कपड़े चेंज करते हैं, फटाफट से निकलते हैं। आपको व्लॉग कंटिन्यू करता हूँ। व्लॉग वैसे भी बड़ा है, इसमें मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। वैसे भी 2 मिनट तक हो गया इंट्रो।
લોક સંગીત લોક સાહિત્ય રજૂ કરવાના છે. સમયાંતરે બધાએ કલાકારોનો આપણે લાભ લેતા જ રહીશું, પણ એની સાથે હું આપને વિનંતી કરું, જો મારો અવાજ આપ સુધી પહોંચતો હોય તો ઇતિહાસમાં એવી આ ધરતી અને એ કચ્છની ધરતી પર જ્યારે આપણે વચ્ચેથી પધારે ત્યારે આપણે બધા જ એમનું અભિવાદન કરીશું. રોડ શો પૂર્ણ થયા બાદ આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી આપણી વચ્ચે ખુલ્લી જીપમાં પધારવાના છે, ત્યારે આપણે એમનું સ્વાગત અભિવાદન કરીશું. અત્યારે આપણી પાસે લગભગ 10,000 જેટલા બહેનો સિંદૂરી સાડીમાં આવી ગયા છે અને ધ્વજ પણ છે. અને એ જ વિકાસની વાત, રક્ષાની વાત અને સમર્થનની વાત એવા ત્રિવેણી સંગમ સાથે જ્યારે દેશના આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સર ઓપરેશન સિંદૂરની અજય સફળતા બાદ જ્યારે કચ્છની પાવન ધરા પર પધારી રહ્યા છે, ત્યારે થોડી જ ક્ષણોમાં એ રોડ શો પૂર્ણ કરી અને આપણી વચ્ચે પધારવાના છે. આ કચ્છની ધરાની પાવન ભૂમિ પર જ્યાં એક તરફ ઉગવાતો દરિયો છે તો એક તરફ રણ છે, અને જેમણે પોતે જ આ કચ્છના રણને હિન્દુસ્તાનનું તોરણ કહ્યું છે, એવા દેશના આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ આપણી વચ્ચે પધારવાના છે, ત્યારે ખૂબ જોશ અને ખૂબ ઉત્સાહ સાથે આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રીનું સ્વાગત અભિવાદન કરીશું. ટૂંક જ સમયમાં તેઓ આપણી વચ્ચે ખુલ્લી જીપમાં આ જ પંડાલમાં આવી રહ્યા છે. કરીને આપણા હાથમાં રહેલા એ તિરંગાને લહેરાવીને એમનું સ્વાગત અને અભિવાદન કરીએ. એ દેશ કે જેણે વિશ્વમાં પોતાનો ડંકો લહેરાવ્યો છે, એ દેશ કે જેણે વિશ્વને વસુધૈવ કુટુંબકમની ભાવનાનો મંત્ર આપેલો છે. ઝુકેંગે નહીં. આપણી વચ્ચે પધારી રહ્યા છે ત્યારે અનંત લાગણી આખા સભા મંડપમાં દેખાઈ રહી છે, ઝળહળી રહી છે. તિરંગો નીચેથી તિરંગો ઊંચેથી લહેરાવો જોઈએ. આ ભારતીયાન ગર્વ અને શાન છે. સાથે અને ભૂતના સભા મંડપમાં જ્યારે ગૃહમંત્રી શ્રી મનોહરલાલજીનું પણ ઉષ્માભેર સ્વાગત કરીએ છીએ. આપણી સાથે મંચસ્થ બિરાજમાન ગુજરાતના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલજી, માન્ય કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી મનોહરલાલજી, માન્ય મંત્રી શ્રી કનુભાઈ દેસાઈ, માન્ય મંત્રી શ્રી મુળુભાઈ બેરા, માનનીય મંત્રી શ્રી પ્રફુલભાઈ પાનછેરિયા, માન્ય સાંસદ સભ્ય શ્રી વિનોદભાઈ ચાવડા, માનનીય ધારાસભ્ય શ્રી અનિરુદ્ધ દવે, માનનીય ધારાસભ્ય શ્રી કેશુભાઈ પટેલ, માનનીય ધારાસભ્ય શ્રી PM જાડેજા, માન્ય ધારાસભ્ય શ્રી ત્રિકમભાઈ ચાંગા, માનનીય ધારાસભ્ય શ્રી માલતીબેન મહેશ્વરી, માનનીય ધારાસભ્ય શ્રી વિરેન્દ્રસિંહ જાડેજા અને માનનીય જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ શ્રી જનકસિંહજી જાડેજાનું અમે સ્વાગત કરીએ છીએ. तिरंगे धरा पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરીએ છીએ, અભિવાદન કરીએ છીએ. ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે માનનીય પ્રધાનમંત્રીજી આપનું. આવો ફરી એકવાર મંચસ્થ બિરાજમાન સર્વે મહાનુભાવોનું ઉષ્માભેર તાળીઓ સાથે देश के नवनिर्माण की इस अमृत यात्रा में गुजरात एक बार फिर बन रहा है विकसित भारत एट 2047 का पथ प्रदर्शक, जहां विकास की ऊंचाइयों को छूती 53,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं गुजरात की धरती से राष्ट्र को समर्पित होने जा रही है. यह अवसर है प्रगति की पंचध्वनि का, यानी ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, पर्यटन, आस्था एवं सशक्त, समर्थ और समृद्ध भारत की नींव रखने का. ऑपरेशन सिंदूर से भारतवर्ष को और ज्यादा सुरक्षित एवं गौरवान्वित कर सीमावर्ती क्षेत्र कच्छ से गुजरात और
देश में प्रगतिशील विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, कच्छ ने विनाशकारी भूकंप की मार झेली, पर विपत्ति को अवसर में परिवर्तित करने के मंत्र को साकार करते हुए अदम्य साहस, परिश्रम और समर्पण से आज कच्छ विकास की नई ऊंचाई तक पहुंचा है। मोदी जी के दूरदर्शी विजन से शुरू हुए रण उत्सव को संयुक्त राष्ट्र ने सराहा और धोरडो बना विश्व का बेस्ट टूरिज्म विलेज। हस्तकला और उद्योग के साथ आज कच्छ देशभक्ति और प्रेरणा का केंद्र बन रहा है। 2001 के भूकंप पीड़ितों को समर्पित एक प्रेरणादायक स्मारक और संग्रहालय स्मृति वन अदम्य मानवीय भावना और गुजरात के अद्भुत पुनरुत्थान का प्रतीक बना है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के सफल नेतृत्व में ऊर्जा एवं अन्य प्रकल्पों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया जा रहा है। भारत 2030 तक 500 गीगावाट की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के पंचामृत लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। इसके लिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 39,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से ट्रांसमिशन परियोजनाओं का कार्य आरंभ किया जा रहा है। ये परियोजनाएं विश्व के सबसे बड़े खाबड़ा अक्षय ऊर्जा पार्क से नवीकरणीय ऊर्जा को देश के अन्य भागों में पहुंचाएंगी। ये परियोजनाएं भारत की ऊर्जा वहन क्षमता सुदृढ़ करेंगी। इसी पंचामृत लक्ष्य के अंतर्गत गुजरात 100 गीगावाट स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के लिए संकल्पबद्ध है। राज्य की कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता में लगभग 60% हिस्सा रिन्यूएबल एनर्जी का है, जो गुजरात की रिन्यूएबल एनर्जी के लिए प्रतिबद्धता दर्शाता है। सभी क्षेत्रों जैसे घरेलू, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, उद्योगों और अन्य सभी के लिए सार्वजनिक सुरक्षा और पर्यावरण का उचित ध्यान रखते हुए विश्वसनीय, किफायती और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति। गुजरात के अन्नदाताओं, हमारे किसान भाइयों को कृषि के लिए दिन के समय पूर्ण रूप से बिजली उपलब्ध कराने के सफल प्रयासों में 266 मेगावाट की क्षमता वाली 4 सौर ऊर्जा परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है। गुजरात में ऊर्जा सुरक्षा हेतु 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से उकाई पावर प्लांट का विस्तारीकरण और कडाना हाइड्रो प्लांट एवं नए सब स्टेशनों का निर्माण और ट्रांसमिशन लाइनों का आधुनिकीकरण हो रहा है। 247 करोड़ रुपए की योजना के तहत गांधीधाम में बिजली लाइनों को भूमिगत कर 53,000 ग्राहकों को बेहतर सेवाएं दी जाएंगी। अन्य सुविधाओं के संदर्भ में यहाँ के पोर्ट लेड डेवलपमेंट के प्रतीक हैं। इसे आगे बढ़ाते हुए दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के क्षेत्र में 10 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट सहित कुल 1100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की अनेक महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास हो रहा है। लोगों की आस्था का प्रतीक माताना मढ़ में लोक उपयोगी सुविधाओं का विकास किया गया है। भुज नक्त्राणा भव्य 4 लेन हाई स्पीड कॉरिडोर की नींव रखी जा रही है, जो कनेक्टिविटी के साथ उद्योग और टूरिज्म को बढ़ावा देगा। देश की प्रगति और सुरक्षा के लिए समर्पित हर नागरिक और भारत की सेना के वीरों को शत शत नमन। विकसित भारत आज 2047 को साकार करता हुआ विकसित गुजरात, ग्रीन गुजरात। आइए तिरंगा लहराकर धन्यवाद करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का। यशस्वी नेता और हम सबके प्रेरणा स्रोत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तालियों की गूंज और हर्ष ध्वनि के साथ उनके विशेष संबोधन के लिए आमंत्रित करते हैं। ભારત માતા की આપણો તિરંગો ઝૂકવો ના જોઈએ। ભારત માતા की
ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રીમાન ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, કેન્દ્રમાં મંત્રીમંડળના મારા સાથી મનોહરલાલજી, મંત્રીમંડળના अन्य सभी सौ सदस्यों, सांसद, विधायकगण, अन्य सौ वरिष्ठ महानुभाव અને કચ્છના મારા વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, મુજા સરજ્જા છત્રી એડા કચ્છી માડું की आयो आऊं कच्छ जा सपूत एड़ा क्रांति गुरु श्याम जी कृष्ण वर्मा के घणे घणे नमन करिया तो आई मारे कच्छी भाप भेणु के मुझा जजा जजा राम राम। साथियों, कच्छ की इस पावन धरा पर आशापुरा माता के आशीर्वाद हमारी सारी आशाएं पूरी करती। आशापुरा माता ने हमेशा इस धरती पर अपनी कृपा रखी। मैं आज कच्छ की धरती से आशापुरा को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं और सभी जनता जनार्दन को प्रणाम करता हूं। साथियों, मेरा और कच्छ का नाता बहुत पुराना है। आप लोगों का प्यार भी इतना है कि मैं अपने आप को कच्छ आने से कभी रोक नहीं पाता। और जब मैं राजनीति में भी नहीं था, सत्ता से मेरा कोई लेना देना नहीं था, उस समय भी कच्छ की धरती पर लगातार आना ये मेरी सहज कार्य रचना हुआ करती थी। यहाँ के चप्पे चप्पे पर जाने का मौका मिला। कच्छ के लोगों का आत्मविश्वास अभावों के बीच भी आत्मविश्वास से भरे हुए लोग ये हमेशा हमेशा मेरे जीवन को दिशा देते रहे। जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं वो जानते हैं, वर्तमान पीढ़ी को शायद पता नहीं है। आज तो यहाँ का जीवन बहुत आसान हो गया, लेकिन तब हालात कुछ और हुआ करते थे। और जब मुख्यमंत्री के रूप में मुझे याद है, जब पहली बार नर्मदा का पानी कच्छ की धरती पर आया, शायद वो दिन कच्छ के लिए दिवाली बन गया था। और ऐसी दिवाली पहले कभी भी कच्छ ने देखी नहीं होगी जो उस दिन हमने देखी थी। पानी के लिए सदियों से तरसता कच्छ, मां नर्मदा ने हम पर कृपा की और मेरा सौभाग्य है कि सूखी धरती पर पानी पहुंचाने के कार्य में निमित्त बनने का मुझे अवसर दिया। मैं जब मुख्यमंत्री
लोग गिनते थे कि मुख्यमंत्री जी कितनी बार कच्च आए, हिसाब लगाते थे। कुछ लोग तो कहते थे मोदी जी ने सेंचुरी लगा दी है। अनेक गांवों में जाना, मेरे कार्यकर्ताओं के घरों में जाना, लोगों को मिलना, मेरे कार्यालय में जाकर के बैठना, ये मेरे स्वाभाविक गतिविधि का हिस्सा था। साथियों, मैंने देखा है कि कच्छ में पानी नहीं था, लेकिन कच्छ के किसान पानीदार थे। उनका जज्बा हमेशा देखने लायक था। सालों तक जो भी मैंने कच्छ में अनुभव किया और मैं उसमें विकास की बहुत संभावनाएं देखता था। कच्छ ऐसा नहीं हो सकता। जिस भूमि पर हजारों साल पहले धौलावीरा हुआ हो, उस भूमि में जरूर कोई ताकत होनी चाहिए। हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। और साथियों, कच्छ ने दिखा दिया कि उम्मीद और निरंतर परिश्रम से स्थितियों को पलटा जाता है, आपत्ति को अवसर में बदला जा सकता है और इच्छित सिद्धियों को प्राप्त किया जा सकता है। जब यहां भूकंप आया तो दुनिया को लगता था कि बस खत्म, तो कुछ नहीं हो सकता। और कच्छ मौत की चादर ओढ़ करके सोया तो भूकंप आया। लेकिन साथियों, मैंने कभी मेरा विश्वास खोया नहीं था। मेरा विश्वास कच्ची खमीर पर था। અને એટલે જ હું તો કહેતો હતો, બાળકોને ભણાવવું પડશે કે કચ્છનો ક અને ખમીરનો ખ। लेकिन मुझे विश्वास था कि कच्छ इस संकट को परास्त करेगा, भूकंप को भी कंपा करके मेरा कच्ची बारूद खड़ा हो जाएगा। और आपने बिल्कुल वैसा ही किया। आज कच्छ व्यापार, कारोबार का, टूरिज्म का एक बड़ा सेंटर है। आने वाले समय में कच्छ की भूमिका और बड़ी होने वाली है। इसलिए जब भी मैं कच्छ विकास को गति देने आता हूं, मुझे लगता है कि मैं और कुछ करूंगा, और नया करूंगा, और ज्यादा करूंगा। मन रुकने का नाम नहीं करता। आज यहां विकास से जुड़े 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। एक समय था पूरे गुजरात में 50,000 करोड़ की योजना सुनाई नहीं देती थी। आज एक जिले में 50,000 करोड़ रुपए का काम। साथियों, ये प्रोजेक्ट भारत को दुनिया की एक बहुत बड़ी और ब्लू इकोनॉमी बनाने, ग्रीन एनर्जी का सेंटर बनाने में भी मदद करेंगे। मैं आप सभी को, मेरे प्यारे कच्छियों को, इन सभी विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार तिरंगा फहरा करके जरा अपना आनंद भी जताइए, उत्साह भी जताइए।
दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र बन रहा है। आप सुन रहे हो क्या कहा मैंने? दुनिया का सबसे बड़ा। हो गया एक बार। ग्रीन हाइड्रोजन एक नए प्रकार का ईंधन है। आने वाले समय में कारें, बसें, स्ट्रीट लाइट ये ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली है। कांडला देश के 3 ग्रीन हाइड्रोजन हब में से एक है। आज भी यहां ग्रीन हाइड्रोजन कारखाने का शिलान्यास हुआ। इस कारखाने में जो टेक्नोलॉजी लगी है, आप गर्व करेंगे साथियों, वो भी मेड इन इंडिया। हमारा कच्छ भारत की सौर क्रांति के भी केंद्र में, दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट में से एक यहां मेरे कच्छ में बन रहा है। एक जमानो હતો આપણે કચ્છનું વર્ણન કરીએ એટલે વારે કે ભાઈ અમારે તો હું રણ છે, અહીંયા શું થાય? અને એ વખતે હું કહેતો હતો આ રણ નહીં, આ તો મારા ગુજરાતનું તોરણ છે। અને એ જ રણ જે ધૂળની ડમરીઓ અને ખારા પાટ આપણને ઘેરતા હતા, એ જ રણ હવે આપણને નહીં, આખા હિન્દુસ્તાનને ઉર્જાવાન બનાવવાના છે। हावड़ा कॉम्प्लेक्स के कारण कच्छ पूरी दुनिया के एनर्जी मैप में अपनी जगह बना चुका है। साथियों, हमारी सरकार का प्रयास है कि आपको पर्याप्त बिजली भी मिले और बिजली का बिल भी जीरो हो। और इसलिए हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की। गुजरात में लाखों परिवार इस योजना से जुड़ चुके हैं। भाई और बहनों, दुनिया के जिन भी देशों ने समृद्धि पाई है, वहां समंदर समृद्धि का एक बहुत बड़ा कारण रहा है। यहां भी धोलावीरा का उदाहरण हमारे सामने है। लोथल जैसे प्राचीन पोर्ट सिटी यहां हुआ करते थे। ये भारत की प्राचीन सभ्यता की समृद्धि के केंद्र रहे। हमारा पोर्ट लेड डेवलपमेंट का विजन इसी महान विरासत से प्रेरित है। भारत पोर्ट्स के इर्द गिर्द बसे शहरों को विकसित कर रहा है। सीफूड से लेकर टूरिज्म और ट्रेड तक कोस्टल रीजन में देश एक नए इकोसिस्टम का निर्माण कर रहा है। देश पोर्ट्स के विस्तार और आधुनिकीकरण उस पर बहुत बड़ा निवेश कर रहा है और इसके परिणाम भी शानदार है। देश के कुछ बड़े पोर्ट्स ने पहली बार एक साल में रिकॉर्ड 15 करोड़ टन कार्गो हैंडल किया। इसमें हमारा कंडला का दीनदयाल पोर्ट भी शामिल है।
देश के कुल समुद्री व्यापार कारोबार का लगभग 1/3 हिस्सा अकेले हमारे कच्छ के ही बंदरगाह से हैंडल होता है। इसलिए कांडला और मुंद्रा पोर्ट की कैपेसिटी को, उसकी कनेक्टिविटी को लगातार बढ़ाया जा रहा है। आज भी यहां शिपिंग से जुड़ी कई सुविधाओं का लोकार्पण किया गया है। यहां नई जेटी बनाई गई है। यहां ज्यादा से ज्यादा सामान स्टोर हो सके, इसके लिए कार्गो स्टोरेज सुविधा बनाई गई है। इस वर्ष बजट में हमने मैरीटाइम सेक्टर के लिए एक स्पेशल फंड की घोषणा की है। बजट में शिप बिल्डिंग पर भी जोर दिया गया है। हम अपनी जरूरत के लिए भी और दुनिया की जरूरत के लिए भी भारत में ही बड़े जहाज बनाएंगे। एक जमाना था આપણું માંડવી તો એના જ માટે મશહૂર હતું। મોટા મોટા જહાજ આપણા લોકો બનાવતા હતા। આજે પણ એ શક્તિ માંડવીમાં જોવા મળે છે। હવે આપણે આધુનિક જહાજ લઈને દુનિયામાં જવા માંગીએ છીએ, એનું નિર્માણ કરીને એને એક્સપોર્ટ કરવા માંગીએ છીએ। અને એનાથી આપણા હજારો નવજવાનોને શિપ બિલ્ડિંગ, આપણે અલંગમાં શિપ બ્રેકિંગ યાર્ડ છે, આપણે હવે તાકાત લગાવી છે શિપ બિલ્ડિંગમાં। અને આ એવું ક્ષેત્ર છે કે જેમાં રોજગારના સૌથી વધારે અવસર છે। साथियों, हमारे कच्छ ने हमेशा अपनी विरासत का सम्मान किया है। अब ये विरासत भी कच्छ के विकास की प्रेरणा बनी है। बीते 2-2.5 दशक में भुज में टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, सिरेमिक और नमक से जुड़े उद्योगों का बहुत विकास हुआ है। कच्ची कढ़ाई, ब्लॉक प्रिंटिंग, बांधनी, कपड़े और चमड़े का काम, इनकी धूम हर तरफ दिखाई देती है। અને આપણું ભુજોડી કોઈ પણ કદાચ હસ્તકલાનો કાર્યક્રમ એવો ના હોય કે એમાં અમારું ભુજોડી ના હોય। અજરક પ્રિન્ટિંગની પરંપરા કચ્છમાં અનોખી છે। અને હવે તો અમારા કચ્છની આ બધી કલાને જીઆઈ ટેગ મળી ગયું છે। એની ઓળખ ઊભી થઈ છે, દુનિયામાં એની ઓળખ ઊભી થઈ ગઈ છે। यानी अब इस पर मोहर लग गई है कि मूल रूप से ये कला कच्छ की है। ये विशेष रूप से हमारे जनजातीय परिवारों के लिए, कारीगरों के लिए बहुत बड़ी पहचान है। इस वर्ष के बजट में केंद्र सरकार ने चमड़ा और कपड़ा उद्योग के लिए अनेक घोषणाएं की हैं। साथियों, मैं कच्छ के किसान बहनों और भाइयों को, परिश्रम को भी नमन करता हूं। आपने मुश्किल चुनौतियों के बीच में हार नहीं मानी। एक समय था जब गुजरात में पानी सैकड़ों फीट नीचे चला गया था। नर्मदा जी की कृपा और सरकार के प्रयासों से आज स्थिति बदल गई। केवड़िया से कच्छ के मोरकुबा तक जो नहर बनी है, उससे कच्छ की किस्मत बदल गई। आज कच्छ के आम, खजूर, अनार, जीरा और ड्रैगन फ्रूट तो कमाल कर रहा है। ऐसी अनेक फसलें दुनिया भर के बाजारों तक पहुंच रही है। एक समय था कच्छ पलायन के लिए मजबूर था।
हमारे यहाँ पॉपुलेशन का माइनस ग्रोथ हुआ करता था। आज कच्छ के लोगों को ही कच्छ में रोजगार मिलता है, इतना नहीं कच्छ के बाहर लोगों की आशा भी कच्छ में बढ़ गई है। साथियों, देश के नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, ये भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में रोजगार है। कच्छ में इतिहास भी है, संस्कृति भी है, प्रकृति भी है। मुझे खुशी है कि कच्छ का रणोत्सव दिनों दिन नई बुलंदी की तरफ बढ़ रहा है। ये जो स्मृति वन हमारे भुज में बना है, इसको यूनेस्को ने दुनिया का सबसे खूबसूरत संग्रहालय माना है। आने वाले समय में यहां के पर्यटन में और विस्तार होगा। धोरडो गांव दुनिया के बेस्ट टूरिज्म विलेज में से एक है क्या धोरडो वाले? आज यहां जरा तिरंगा फहराइए। मांडवी का सी बीच भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। और मैं तो भूपेंद्र भाई को रिक्वेस्ट करता हूं, कच्छ के सारे नेता यहां बैठे हैं, जब हमारा रणोत्सव चलता हो, क्या उसी समय हम कच्छ के बीच पर बीच कंपटीशन खेलों की, क्योंकि आजकल बीच गेम्स बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। अभी कुछ समय पहले दीव में नेशनल कंपटीशन हुआ, हजारों बच्चे खेलने के लिए आते हैं, बीच की बालू में खेलना होता है। मैं चाहूंगा कि रेगुलरली जब रणोत्सव चलता हो, उसी समय हमारे मांडवी के बीच पर देश भर के लोग आए, खेले और बीच उत्सव, यानी एक प्रकार से कच्छ टूरिज्म के अंदर नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता चले। आपको जो भी मदद चाहिए, मैं तो मौजूद ही हूं हमेशा। साथियों, अहमदाबाद ने भूजनी वच्चे नमो भारत रैपिड रेल आने पण टूरिज्म ने मोटी ताकत आपी। साथियों, આજે 26 मई છે। કેમ આમ ઠંડા પડી ગયા? आप सब गुजरात भाईओ बहनों मैंने वाजते गाते गुजरात में विदाय आपीने दिल्ली मोकल्यो। અને 2014 26 मई આજે અને લગભગ આ જ સમયે દેશમાં પહેલી વાર प्रधानमंत्री तरीके, प्रधान सेवक तरीके सौगंध लीधा। अपना आशीर्वाद थी 26 मई 2014 गुजरात सेवा में आगे वधीने राष्ट्र सेवा में 11 वर्षनी यात्रा અને વિધિના જોગાનો ઉપયોગ જુઓ। 26 મઈ પ્રધાનમંત્રી પદને 11 વર્ષ થાય અને જે દિવસે મેં સોગંદ વિધિ લીધી હતી ત્યારે દેશ દુનિયામાં ઇકોનોમીમાં 11 નંબર પર હતો અને આજે 11 વર્ષે 4 नंबर पर पहुंची।
साथियों, भारत टूरिज्म पर विश्वास करता है। टूरिज्म लोगों को जोड़ता है, लेकिन पाकिस्तान जैसा देश भी है जो टेररिज्म को ही टूरिज्म मानता है, और ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमारे गुजरात में कच्छ के लोगों को पता होगा कि पहले गांधीनगर से कोई भी मंत्री मुख्यमंत्री कच्छ आते थे 25-30 साल पहले, तो उनके भाषण में पाकिस्तान से शुरू होता था, पाकिस्तान पूरा होता था, और कच्छ वालों को बार बार याद कराते थे पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। आपने देखा होगा 2001 में मैंने तय कर लिया कि मैं समय उसमें बर्बाद नहीं करूंगा। मैं कभी भी उस चीज के जिक्र ही नहीं करता था, मैं सिर्फ कच्छ की ताकत की बात करता था। भुला दिया था मैंने। और कच्छ के लोगों ने पूरे सामर्थ्य के साथ पाकिस्तान को भी ईर्ष्या हो जाए वैसा कच्छ बना दिया। दोस्तों, साथियों, हमारी नीति आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की है। ऑपरेशन सिंदूर ने इस नीति को और स्पष्ट कर दिया है। जो भी भारतीयों का खून बहाने की कोशिश करेगा, उसको उसकी भाषा में ही जवाब दिया जाएगा। भारत पर आंख उठाने वाले किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर मानवता की रक्षा और आतंकवाद के अंत का मिशन है। मई के बाद मैंने कभी छुपाया नहीं, सीना तान कर बिहार की जनसभा में मैंने घोषणा की थी, मैं आतंकवाद के ठिकानों को मिट्टी में मिला दूंगा।